Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is the workbook of science for standard 7. In last session, we have to started chapter number 6, that is physical and chemical changes, and also completed some questions 1 to 6. Okay, so today we are going to start this question number 7. Answer the following question in short. So first question is, when a candle burns, both the physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. Okay, तो जब कैंडल को बंद करेंगे तो पहले वैक्स क्या होगा, उसका मेल्ट होगा. वैक्स मेल्ट होना वो फिजिकल चेंज होगा. ओके, अभी मेल्टेड वैक्स को अगर बर्न करेंगे तो उसमें से वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और वो प्रोड्यूस करेगा. सो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा. तो ये जो चेंजेस हुए दोनों बर्निंग ऑफ कैंडल, उसमें फिजिकल केमिकल दोनों चेंज हुए. ऐसा दूसरा एग्जांपल है कि सल्फ़र को जब हीट करेंगे सो फर्स्ट वो मेल्ट होगा लिक्विड सल्फ़र में, वो फिजिकल चेंज होगा. फिर लिक्विड को अगर बर्न करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा गैसियस फॉर्म में और बर्न्स टू फॉर्म अ सल्फर डाइऑक्साइड. तो इट इज़ अ केमिकल चेंज. Next, how would you show that the setting the curd is a chemical change? Curd is formed from the milk by the action of bacteria. Milk, curd, and have different smell, taste, and chemical properties. So, setting of curd is a chemical change. Third, explain why rusting of iron object is faster in coastal areas than that in desert. So, iron get rusted in the presence of air and moisture. In coastal area, air is moist, while in desert air is dry. डेजर्ट एरिया में की एयर जो है वो ड्राई है, कोस्टल एरिया की मॉइस्ट होती है. सो मोर एवर द वाटर इज कोस्टल एरिया इज सॉल्टी विच मेक रस्टिंग ऑफ आयरन फास्टर. फोर्थ, एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन अकरिंग व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन एयर. गिव इट्स केमिकल इक्वेशन. सो व्हेन मैग्नीशियम स्ट्रिप इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन एयर इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट विथ वाइट फ्लेम, and here magnesium combined with oxygen in the air and leave a white powdery ash, namely magnesium oxide, and its chemical equation is as follow: magnesium plus oxygen, we get magnesium oxide. Give the chemical reaction between the iron nail and identify copper sulfate solution. So this is the copper sulfate, CuSO4, iron, we get iron sulfate, FeSO4 and copper. Now next, explain the chemical reaction occurring when carbon dioxide is passed through the decanted solution of lime water. So when the carbon dioxide is passed through decanted solution of lime water, a white insoluble substance, calcium carbonate and water are formed. So due to which particle of calcium carbonate in solution it turns milky. जैसे कि डिकेंटेड लाइम वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर कैल्शियम कार्बोनेट CO थ्रू इंसोल्यूबल बनाता है वाटर CO2, वाटर H2. 7. One more new substances are produced in a chemical reaction. In addition to this, which phenomena are also seen? The following phenomena are also seen. First, heat, light, sound, electricity and other radiations may be given off or absorbed. Second, a gas may be formed. Third, a color change may take place. Fourth, a change in odor may take place. Now 8. State the characteristic of chemical changes. So the first, chemical change is generally irreversible. During the chemical change, one or more substances are formed with new properties. During some chemical change, heat may be given off or absorbed. Explain the importance of a ozone layer. Ozone layer as a shield work करता है, वो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, उसको ब्रेक करता है, तो इसलिए वो हमारा एक नेचुरल शील्ड है. So ozone layer protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. It absorbs this radiation and break down to the oxygen. Ozone layer acts as a natural shield against ultraviolet radiation. Now next, here are given physical and chemical changes. Physical property like shape, volume, color, state of substance change. Substances with new properties are not formed. Chemical changes of the substance, उसकी properties change हो जाती है. Substances with new properties are formed. यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के डिफरेंस क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. फिजिकल चेंजेस आर टू गेट क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट, टू मेक अ मैग्नेट फ्रॉम आयरन, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, गैल्वेनाइजेशन एंड टू कलर आयरन. केमिकल चेंज आर रस्टिंग ऑफ आयरन, टू एक्सप्लोस फायर क्रैकर, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 10, मैचअप. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर,
आयरन सल्फेट ग्रीन कलर, कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल इन वाटर, मैग्नीशियम मेटल। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हाउ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर। तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट तो आपको क्या लेना है, वाटर लेना है तो बीकर में, फिर उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं, वाटर को हीट करना है जब तक वो बॉयल नहीं हो जाए, फिर उसको नाउ गो ऑन वेडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली। ओके, उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है, उसको स्टीयर करना है कंटिन्यूसली, फिर वो तब तक स्टीयर करना है जब तक वो डिजोल्व ना हो तब तक। फिर लीव द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब फॉर सम आवर्स। सो चेक द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम whether crystals are formed or not. नेक्स्ट है स्टेट द रेमेडीज ऑफ द प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। सो कैसे है? एक तो उसको पेंट करने से, ऑयल ग्रीस लगाने से जो सन एयर के और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट नहीं आते, फिर उसके ऊपर जिंक और क्रोमियम का थिक लेयर थिन लेयर लगाने से जो आयरन से प्रिवेंट करता है। थर्ड, टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन प्लेट्स ऑफ शीप दे आर joined with big slabs of more reactive metal like zinc or magnesium and slabs are replaced periodically. Fourth, stainless steel is made by mixing iron with carbon and metal like chromium, nickel and manganese. It does not rust. तो ये सारे क्या है, आयरन के रस्टिंग से बचाने के तरीके हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू शो दैट द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज। तो उसमें फर्स्ट जो है आएगा कि बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। सेकंड, सी द स्टीम यूजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। थर्ड, होल्ड एन inverted pan by its handle over and the steam above from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. ऑब्जर्व करना है कि वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए वो इनर सरफेस में आपको दिखेंगे और वो जो स्टीम होगी वो राइज होगी, वो फिजिकल चेंज होगा। फिर टू शो दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन केमिकल चेंज। तो आपको प्रोसीजर क्या करनी है, आपको थिन रिबन लेनी है मैग्नीशियम की, सैंड पेपर में क्लीन करनी है, फिर उसको बर्न करना है तो आप एक वाइट कलर की फ्लेम देखोगे और वो जो होगी वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज। चलो नेक्स्ट है टू शो दैट चेंज नोटिस्ड ऑन पुटिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अ केमिकल चेंज। आयरन नेल जैसे कि ग्लास का बीकर लेना है, उसको कप वाटर से भरना है, फिर उसमें कॉपर सल्फेट डिजोल्व करना है, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फ्यू ड्रॉप ऐड करने हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा इनिशियल स्टेज में। फिर सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड उसमें आयरन नेल ऐड करने। आयरन नेल ऐड करोगे ना तो हाफ एन आवर तक उसको ऐसे ही रहने देना है स्टेबल, और फिर आप देखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो जो ब्लू कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा और जो रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स होंगे वो डिपॉजिट होंगे ब्लेड के ऊपर। इट मीन्स द चेंज नोटिस्ड ऑन पुटिंग एंड आयरन ब्लेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अ केमिकल चेंज। ये उसकी इक्वेशन, कॉपर सल्फेट आयरन, आयरन सल्फेट ग्रीन, कॉपर रेडिश ब्राउन, ब्लू ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा और कॉपर। फिर इसमें क्या करना है आपको, टू शो दैट द चेंज अकरिंग ऑन द मिक्सिंग विनेगर एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा इज अ केमिकल चेंज। कैसे पता चले, आपको विनेगर लेना है ये टेस्ट ट्यूब में और बेकिंग सोडा का मिक्सचर लेना है। ओके, फिर ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, फिर बबल ऑफ अ गैस आर कमिंग आउट। अभी जब ये टेस्ट ट्यूब है, फिर बेंड ट्यूब है, अभी यहाँ से क्या होगा, बबल क्या हो गए बाहर निकलेंगे, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर। तो वो जो गैस हो गया उसको ये लाइम वाटर है उसमें से पास करना है और ऑब्जर्व करना है, तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों? सो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड विनेगर टेक प्लेस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर एक दूसरे के साथ क्या फॉर्मेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो ये इसमें क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है और वो मिल्की कलर का हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या मिलेगा, चेंज अकरिंग ऑन मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, so students, here we completed this chapter number 6. So hope you all are got it, and you must have to fill this workbook in chapter 6. So till the next session, keep learning, stay home and stay safe.